Hello students, this is Utkarsh Bhargav. In this lecture, I'm going to start with the chapter number 3rd of unit number 3rd of class 11th Economics, Indian Economic Development. The chapter which I'm going to start today is about the very, very big vital topic which is a kind of threat for each and every economy in the whole world. The threat which I want to talk about is, of course, the fear of every household, every individual, and that is inflation. Inflation means what? The continuous rise in the price level in an economy because of so many reasons. We're going to talk about a lot of reasons in this lecture. So the persistent increase in the price level in an economy is basically known as the inflation. That when the purchasing power of the people are falling down, when the potential of their budget is falling down, then that particular situation is known as inflation. So let us just take a look at the definition first. Now, what is written? Firstly, inflation is a situation of persistent rise in price level which leads to fall in the purchasing power of money. Means when the purchasing power of the money which you have in your pocket or in your banks, when the purchasing power of your money is falling down. Now when it will fall down? The answer is really very simple. When the price level of the goods and services in the economy goes on increasing, in that case, you will feel the poverty, you can say, in your economy. Because it doesn't matter how much money you have. The thing which matters is the price level in the market, the price level in the economy. And we work to earn money, but the worth of money is dependent upon the price level. So, inflation. So, अभी तक आपको इतना तो realize हो गया होगा that inflation is not at all a good thing for an economy. Because ये आपकी इकोनॉमी में कमाए जाने वाले पैसे की वर्थ को बहुत कम कर देता है. लोग कितना कमा रहे हैं उस चीज पर फर्क नहीं पड़ता. उस पैसे की परचेजिंग पावर कितनी है उस बात पे डिपेंड करता है. सो द नेक्स्ट टॉपिक. नाउ बिफोर द नेक्स्ट टॉपिक यू मस्ट अंडरस्टैंड दिस थिंग गाइज that inflation basically have two types. Type number 1. The first type of the inflation is known as the demand pull inflation. Now what is this demand pull inflation? Guys, I hope you know the meaning of demand. Demand is basically the quantity of a commodity which a consumer is willing to buy at a particular time at a particular price. Now, so the demand is from the consumer's point of view. Demand is a term which is linked with the consumer. Now, when a consumer is demanding excessively, means कंज्यूमर कुछ हद से ज्यादा ही डिमांड कर रहा है, इन दैट केस
the planned inventory means the planned stock falls short in the market. मतलब कि अगर कोई प्रोड्यूसर ये सोच रहा है कि आने वाले एक हफ्ते में मेरे प्रोडक्ट की डिमांड इतनी होगी तो मेरे को इतना माल प्रोड्यूस करके मार्केट में सप्लाई करना है, लेकिन अगर उसकी ये वाली प्रिडिक्शन रॉन्ग हो जाती है, और रॉन्ग भी किस वे में, दैट पीपल आर डिमांडिंग मोर in respect of its supply. In that case, there will be excessive demand. Now, when a producer faces such kind of excessive demand, now that excessive demand would encourage the producer, or you can say that it would give a signal to the producer that yes, consumers are ready to pay high price. Now, when such kind of signal is given by the consumer to the producer, in that case, a producer will surely increase the price of his good or service. So, how demand pull inflation works? When a consumer, or you can say the overall consumers in the market, are doing excessive demand. That excessive demand means that consumers are ready to pay high price and producers will charge high price. So that rise in price because of excessive demand is known as demand pull inflation. The first type of inflation. Second type is the cost push inflation. Now, what is this cost push inflation? Guys, as I said that demand belongs to consumer side. Similarly, the word cost. Now, what is cost? Cost means the expenditure beared by a producer on the production of a good or a service is known as cost. हिंदी में कॉस्ट के लिए बहुत ही अच्छा वर्ड यूज किया जाता है. दैट वर्ड इज लागत. किसी चीज को बनाने में कितना पैसा खर्च हुआ वो है उसकी लागत यानी कि कॉस्ट. हम लोग we often use the wrong term when we go for the shopping. हम शॉपकीपर से पूछते भी इसकी कॉस्ट क्या है, जबकि हमें पूछना क्या चाहिए भी इसका प्राइस क्या है. गाइस, प्राइस और कॉस्ट में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है. प्राइस वो अमाउंट है जो हम लोगों को कंज्यूमर्स को पे करना होता है. वहीं कॉस्ट वो अमाउंट है जो प्रोड्यूसर को बियर करना पड़ता है प्रोडक्शन के दौरान. अब ये कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन क्या है? दैट व्हेन द प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज are increasing because of the increase in the cost of production. मतलब कि इसमें कंज्यूमर का कोई रोल नहीं है. कंज्यूमर की डिमांड से यहां पर कोई लिंक नहीं है, कुछ लेना देना नहीं है उस चीज से. यहां पर
प्राइस लेवल बढ़ रहा है किस चीज की वजह से? कि प्रोड्यूसर की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गई, उसकी लागत बढ़ गई, इसलिए उसको प्राइस बढ़ाना पड़ा। जिस चीज की वजह से मार्केट में चीजों का प्राइस लेवल बढ़ना शुरू हो गया। अगेन इन्फ्लेशन। नाउ दिस थिंग इज नोन एज कॉस्ट push inflation. So there are two terms, demand pull and cost push. Demand pull consumer side, cost push producer side. Simple. Next आते हैं हम डिमांड पुल की डेफिनेशन पे। थोड़ा आप लोगों का बेस बनाने में हमें सारी चीजें करनी पड़ती हैं। तो अब डिमांड पुल की आपके माइंड में डेफिनेशन क्लियर है। हम डेफिनेशन भी पढ़ते हैं एंड देन उसके पीछे के कॉजेस, कि कोई कंज्यूमर डिमांड ज्यादा कर रहा है तो क्यों कर रहा है? इफ द कंज्यूमर इज डिमांडिंग मोर, देन व्हाट इज द कॉज बिहाइंड द एक्सेसिव डिमांड? व्हाट सडनली हैपेंड दैट कंज्यूमर इज demanding more or demanding excessively in the market? But before that, let us take a look at the definition of demand pull inflation. The definition is rise in price level when there is excess demand for goods and services over their supply. मतलब कि जब चीजों की डिमांड उनकी सप्लाई से ज्यादा होनी शुरू हो जाए, तो उस केस में जब प्राइस इंक्रीज होना शुरू हो जाता है तो उसे आप नाम देते हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन का। क्या लिखा हुआ है इसके नीचे? दैट व्हेन देयर इज इंक्रीज इन डिमांड एंड सप्लाई does not increase proportionately, then price tends to rise. Means what? कि अगर आपकी इकोनॉमी के अंदर डिमांड और सप्लाई एक साथ प्रोपोर्शनली नहीं बढ़ती तो उस केस के अंदर आपको कहीं ना कहीं डिमांड पुल इन्फ्लेशन देखने को मिलेगा या प्राइसेस बढ़ते हुए दिखाई देंगे आपको। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कॉजेस बिहाइंड डिमांड पुल इन्फ्लेशन, कि वही डिमांड बढ़ रही है तो क्यों बढ़ रही है, क्या रीजन है डिमांड बढ़ने के पीछे का? सो फर्स्ट इज इंक्रीज इन पॉपुलेशन। बहुत ही वैलिड पॉइंट है। अगर एक्सक्यूज मी, अगर इकोनॉमी के अंदर पॉपुलेशन ही बढ़नी स्टार्ट हो जाए या पॉपुलेशन ही बहुत ज्यादा हो जाए, तो उस इकोनॉमी में डिमांड ऑटोमेटिकली बहुत ज्यादा होगी, क्योंकि जब कंज्यूम करने वाले बढ़ जाएंगे। बात यहां पर देखने वाली क्या है गाइस, कि अगर कंज्यूम करने वाले बढ़ जाएंगे तो ऑटोमेटिकली डिमांड का लेवल तो वैसे ही बढ़ जाएगा। ऐसी इकोनॉमी को हम नाम देते हैं डिमांड ड्रिवन इकोनॉमी, कि यहां पर लोग ही इतने हैं कि डिमांड इतनी हो जाती है कि अपना भी इकोनॉमी चलती रहती है, इकोनॉमी को स्ट्रगल करने की जरूरत नहीं है। सो इफ द पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग, इट रेजेस द नंबर ऑफ कंज्यूमर्स in the market, which in turn increases the demand for goods and services. मतलब कि अगर
आपकी इकोनॉमी में कंज्यूमर ही ज्यादा हो जाएंगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा कि आपकी इकोनॉमी में चीजों की डिमांड भी ज्यादा हो जाएगी, और जब चीजों की डिमांड ज्यादा होगी तो ऑटोमेटिकली प्राइसेस भी बढ़ने स्टार्ट हो जाएंगे। दूसरा पॉइंट, इंक्रीज इन मनी सप्लाई। मतलब गाइस, मनी सप्लाई बढ़ने का मतलब यह हुआ, व्हाट इज मनी सप्लाई? इट इज द टोटल स्टॉक ऑफ मनी हेल्ड बाय द पब्लिक एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। आप प्लीज मनी सप्लाई का मतलब ये ना लेके चलें कि जो पैसा सप्लाई हो रहा है, नहीं। मनी सप्लाई का मतलब है कि जो पैसा इकोनॉमी में सप्लाई हो चुका है। अब जो पैसा सप्लाई हो चुका है वो भाई इकोनॉमी के अंदर है, लोगों के पास है, अनटिल अनलेस उसे लीक ना किया जाए, कहीं होर्ड ना किया जाए। सो द टोटल स्टॉक ऑफ मनी हेल्ड बाय द पब्लिक एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। सो अगर ये मनी सप्लाई बढ़ाई जाती है तो ऑटोमेटिकली किसके हाथ में पैसा ज्यादा बढ़ेगा? कंज्यूमर के। जब कंज्यूमर के हाथ में ज्यादा पैसा बढ़ेगा तो उस केस में वो डिमांड भी करेंगे ज्यादा। ऑटोमेटिकली डिमांड ज्यादा होगी तो प्राइसेस भी बढ़ने स्टार्ट हो जाएंगे। वेरी सिंपल स्टफ। सो इंक्रीज इन मनी सप्लाई मींस इंजेक्शन। इसे इंजेक्शन का नाम क्यों दिया गया है? एडिशनल पैसा इकोनॉमी के अंदर डाला गया है, उसे हम इंजेक्शन का नाम देते हैं। व्हाट इज द पॉइंट? इंक्रीज इन मनी सप्लाई बाय सेंट्रल बैंक रेजेस द परचेजिंग पावर ऑफ द पब्लिक। कि अगर मनी सप्लाई सेंट्रल बैंक बढ़ा देता है तो वो इकोनॉमी में रहने वाले लोगों की परचेजिंग पावर को भी बढ़ा देगा, विच इंक्रीजेस द डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। जो गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड को भी बढ़ा देगा, एंड अल्टीमेटली लीड्स टू व्हाट? द डिमांड पुल इन्फ्लेशन। नेक्स्ट, सी, इंक्रीज इन डिस्पोजेबल इनकम। अब बच्चे सोच रहे होंगे, हमारे व्यूअर्स क्या सोच रहे होंगे कि ये डिस्पोजेबल इनकम नॉर्मल इनकम से किस तरीके से अलग है, क्या मतलब है इसका? गाइस, डिस्पोजेबल इनकम is the income left after deducting all the taxes, fees and fines, जिस पर आपका 100% हक है, जिसे आप अपने मनचाहे तरीके से खर्च कर सकते हैं। डिस्पोजेबल इनकम को समझाने का एक और मेरे पास अच्छा तरीका है, एक एग्जांपल लेके चलते हैं। से यू आर एम्प्लॉयड and your annual salary is say 10 lakh rupees annual। अब इस 10 लाख रुपीस में आप क्या एक एक पैसे को खर्च कर सकते हैं? आप सोच रहे होंगे हां बिल्कुल कर सकते हैं, बट द आंसर इज नो, यू कैन नॉट। आपको सबसे पहले उन 10 लाख रुपीस पर देना होगा टैक्स, सबसे पहले इनकम टैक्स। उसके अलावा भी आपको और दूसरे डायरेक्ट टैक्सेस देने पड़ते हैं जो सरकार के पास सीधे तौर से जाते हैं, आपके नाम से जाते हैं। और ये वो टैक्सेस हैं, डायरेक्ट टैक्सेस वो टैक्सेस होते हैं जिन्हें आप आगे किसी और के ऊपर पास ऑन नहीं कर सकते। आपकी इनकम है तो टैक्स भी आप ही पे करेंगे, आपकी प्रॉपर्टी है तो प्रॉपर्टी टैक्स भी आप ही को भरना पड़ेगा, आपकी वेल्थ है तो आपको ही वेल्थ टैक्स पे करना पड़ेगा। ये होते हैं डायरेक्ट टैक्सेस। तो इन टैक्सेस को पे करने के बाद जो आपके पास इनकम बचती है
उसे आप नाम देते हैं डिस्पोजेबल इनकम। अगर कुछ बच्चे सोच रहे हो कि सर डिस्पोज करना तो मतलब होता है कि किसी चीज को आप डस्टबिन में फेंक रहे हैं, तो यहां पर भी मीनिंग यही है इसका। आपने एक बार सरकार को टैक्स पे कर दिया, फिर चाहे आप उस पैसे को डस्टबिन में ही क्यों ना फेंक दें, सरकार आपको कुछ नहीं बोल सकती, तभी उसे नाम दिया जाता है डिस्पोजेबल इनकम, जिसे आप लिटरली डिस्पोज कर सकते हो, सरकार कुछ नहीं बोलेगी। क्यों नहीं बोलेगी? क्योंकि उस इनकम को रखने के लिए आप ऑलरेडी टैक्स पे कर चुके हो। सिंपल। सो दिस इज द केस। तो क्या है? डिस्पोजेबल इनकम इज द इनकम लेफ्ट विद एन इंडिविजुअल आफ्टर डिडक्टिंग ऑल दी टैक्सेस। जैसी मैंने डेफिनेशन आपको बोली, व्हेन कॉमन मैन हैज मोर मनी लेफ्ट आफ्टर डिडक्टिंग ऑल द टैक्सेस, देन he will demand more goods and services. So, अगर एक कॉमन मैन के पास ज्यादा पैसा बचता है अपने सारे टैक्सेस को कट करने के बाद, तो वो ज्यादा डिमांड करेगा, और जब वो ज्यादा डिमांड करेगा तो सीधी सी बात है कि डिमांड पुल इन्फ्लेशन भी होगा। सो दिस इज द केस गाइस, कि जब आपको अपनी इकोनॉमी के अंदर डिमांड बढ़ानी है तो आप टैक्सेस को कम कर दीजिए, डिमांड ऑटोमेटिकली बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी। तो ये था डिमांड पुल इन्फ्लेशन के पीछे का तीसरा रीजन। अब आता है चौथा रीजन। क्या लिखा है? राइजिंग वॉल्यूम ऑफ ब्लैक मनी। अगर एक इकोनॉमी के अंदर ब्लैक मनी का लेवल बढ़ रहा है या बढ़ जाता है, तो वहां पर आपको एक डिमांड में एक अलग ही सरप्लस देखने को मिलेगा, बहुत एक्स्ट्रा डिमांड होगी वहां पर। क्यों होगी? बिकॉज लोगों के पास अनअकाउंटेड मनी बहुत सारा है, वो डेली बेसिस पर बहुत सारी ट्रांजैक्शंस करते रहेंगे, पैसा बहुत आ रहा है। तो अगर ब्लैक मनी की वॉल्यूम बहुत ही ज्यादा है तो ऑटोमेटिकली डिमांड का लेवल ज्यादा होगा, और जब डिमांड का लेवल ज्यादा होगा तो अगेन डिमांड पुल इन्फ्लेशन। सो क्या पॉइंट लिखा हुआ है यहां पर? क्या लिखा हुआ है? इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ ब्लैक मनी, इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ ब्लैक मनी can leads to excess demand in the economy, which in turn leads to demand pull inflation, जो कहीं ना कहीं डिमांड पुल इन्फ्लेशन को और बढ़ावा देता है। Now, next is increase in investment. What is this increase in investment? इन्वेस्टमेंट अगर बढ़ती है इकोनॉमी के अंदर, तो उस मोमेंट वो पैसा किसी ना किसी की पॉकेट में तो जाएगा। इट्स वेरी सिंपल थिंग टू अंडरस्टैंड कि इन्वेस्टमेंट भी एक इंजेक्शन का एग्जाम्पल है। अगर आपकी इकोनॉमी के अंदर इन्वेस्टमेंट का लेवल बढ़ा है तो उस केस में बहुत सारी लोगों की पॉकेट्स में पैसा जाता है। जब लोगों की पॉकेट्स में पैसा जाता है तो उस
केस में वो डिमांड भी ज्यादा करेंगे। जब वो डिमांड ज्यादा करेंगे तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन होगा। कितना इजी कंसेप्ट। सो इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट done by the domestic or foreign investors would lead to rise in money income of the people in the economy। तो चाहे घर का इन्वेस्टर हो, चाहे घर का इन्वेस्टर हो या बाहर का इन्वेस्टर हो, कहीं का भी इन्वेस्टर हो, वो इन्वेस्टमेंट करेगा तो उससे हमारी ही इकोनॉमी में लोगों की इनकम का लेवल बढ़ेगा। Now this would increase their purchasing power and increase the aggregate demand of the economy, resulting what? The demand pull inflation। उसकी वजह से क्या होगा? डिमांड पुल इन्फ्लेशन होगा। बात ये सीधी सी है। सो इन्वेस्टमेंट भी एक तरीके से डिमांड पुल इन्फ्लेशन के पीछे का रीजन बनता है। फिर आता है लास्ट 6th पॉइंट, इंक्रीज इन पब्लिक एक्सपेंडिचर। पब्लिक एक्सपेंडिचर पब्लिक के ऊपर, सोसाइटी के ऊपर, सिस्टम के ऊपर किए गए खर्चे को हम बोलते हैं। अगर पब्लिक और सोसाइटी के ऊपर किए जाने वाले खर्चे को सरकार बढ़ा देती है, इंक्रीज कर देती है, तो उस केस में कहीं ना कहीं लोगों की इनकम बढ़ती है। कैसे बढ़ती है? अगर सरकार पब्लिक एक्सपेंडिचर को बढ़ा रही है, अगर सरकार पब्लिक पे किए जाने वाले खर्चे को बढ़ा रही है, जैसे सड़क बनवाना, ब्रिज बनवाना, अलग अलग कैनाल्स, डैम्स या एडमिनिस्ट्रेशन सर्विसेज पे खर्चा करना, ये सारे खर्चे के लिए सरकार जिन लोगों को हायर कर रही है, अगर सरकार सड़क बनवा रही है, अगर सरकार कुछ और कर रही है, तो उसके लिए सरकार को लोगों को हायर करना पड़ेगा। और सरकार जिनको भी हायर कर रही है वो कहीं और से थोड़ी ना आएंगे, किसी और कंट्री से थोड़ी ना आएंगे, हमारी ही कंट्री के लोग होंगे। अल्टीमेटली उससे हमारी इकोनॉमी में एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, लोगों की इनकम का लेवल बढ़ेगा, एंड दैट वुड श्योरली इंक्रीज द डिमांड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, एंड विच वुड अल्टीमेटली रिजल्ट टू the demand pull inflation. Easy? So increase in what? Public expenditure. क्या लिखा हुआ है? That public expenditure done by the government would increase the money income of the people in the economy. Fine, would increase, यहां पे वर्ड इंक्रीज आएगा गाइस, would increase the money income of the people in the economy. Now this would increase their purchasing power, भाई की सीधी सी बात है, purchasing power बढ़ेगी, and increase the aggregate demand of the economy, resulting demand pull inflation, जिसकी वजह से क्या होगा? डिमांड पुल इन्फ्लेशन हो जाएगा। तो गाइस, हमने
ये सारे पॉइंट्स पढ़े समझे, किसके पीछे के? डिमांड पुल इन्फ्लेशन के पीछे के। अगला टॉपिक, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। क्या है ये कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन? बहुत ही सिंपल, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि जब चीजों की कॉस्ट बढ़ने की वजह से, कॉस्ट का मतलब क्या? एक्सपेंसेस बियर्ड बाय द प्रोड्यूसर फॉर प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज, कि जो खर्चा प्रोड्यूसर ने बियर किया किसी चीज की प्रोडक्शन के लिए, अगर वही कॉस्ट, वही खर्चा बढ़ना चालू हो जाए, बढ़ना स्टार्ट हो जाए, तो उस केस में आपकी इकॉनमी में चीजों के दाम बढ़ने चालू हो जाएंगे, जिसे आप नाम देते हैं कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। फाइन। सो डेफिनेशन, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, it occurs when price level increases due to increase in the cost of production। कि ये कब होता है? जब प्राइस लेवल बढ़ता है, किस चीज के लिए, किस चीज की वजह से? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ने की वजह से। नेक्स्ट, causes behind cost push inflation। cost push inflation के पीछे की क्या वजह हो सकती है, क्या रीजंस हो सकते हैं, जरा हम उनको डिस्कस करें। ये तो गाइस आपके माइंड में एक इमेज बन गई होगी कि जब प्रोडक्शन के लिए किए जाने वाले खर्चे में कुछ भी इंक्रीज होता है तो उसकी वजह से हमें कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन देखने को मिलता है। लेकिन मैं सबसे मेन पॉइंट पर आऊं कि कॉस्ट बढ़ रही है तो क्यों बढ़ रही है, क्या रीजंस हैं कॉस्ट के पीछे बढ़ने के। तो चलिए थोड़े से हम रीजन डिस्कस करते हैं। पहला पॉइंट, हायर वेज रेट। या बोल सकते हो इंक्रीज इन वेज रेट। नाउ यू मस्ट बी थिंकिंग कि मार्केट में वेज रेट कौन डिटरमाइन करता है, कौन सेट करता है? गाइस, मार्केट में वेज रेट डिमांड एंड सप्लाई सेट करते हैं, लेकिन वो वेज रेट थोड़े से अलग होते हैं इंडस्ट्रीज में चल रहे वेज रेट से, क्योंकि हर इंडस्ट्री में एक अलग तरह के लेबर की, एक अलग तरह के स्किल की जरूरत पड़ती है, और उसी स्किल पे ये वाली चीज डिपेंड करती है कि लेबर की वेजेस कितनी होंगी, और उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में लेबर की वेज कितनी सेट की जाए उसे कुछ हद तक लेबर यूनियन भी डिसाइड करती है। अब ये लेबर यूनियन क्या होती है? रिमेंबर गाइस, लास्ट चैप्टर एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट, उसमें मैंने आपको एक टॉपिक पढ़ाया था, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सेक्टर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, जिसमें मैंने आपको ये वाली बात बोली कि फॉर्मल सेक्टर में लेबर यूनियन बनाने की फ्रीडम होती है कि लेबर्स मिलके कुछ लीडर्स को चुने और वो लीडर्स लेबर के वेलफेयर के लिए काम करे, सीधा एडमिनिस्ट्रेशन, इंडस्ट्री के जो ऑनर्स हैं उनसे कांटेक्ट में रहे
और लेबर के वेलफेयर के लिए बात करें, लेबर के हित में काम करें। तो अगर लेबर यूनियन स्ट्रांग है तो वो एडमिनिस्ट्रेशन से हमेशा हायर वेज रेट के लिए बार्गेन करेंगे, अच्छी वेज रेट की डिमांड करेंगे। एंड दिस वुड लीड्स टू व्हाट? इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इफ द इंडस्ट्री इज पेइंग हायर वेज रेट, then they will recover that higher wage rate by increasing their prices, and that would ultimately leads to cost push inflation. Let us take a look at the content. Strong labor unions ensure payment of higher wages, कि वो हमेशा ये इंश्योर करते हैं कि लेबर को मिले हायर वेजेस। ड्यू टू दिस, प्रोड्यूसर्स शिफ्ट बर्डन ऑफ इंक्रीजिंग कॉस्ट टू द कंज्यूमर बाय रेजिंग द प्राइस लेवल। अपने प्राइस लेवल को बढ़ा के। अब अगर हायर वेज रेट देनी पड़ रही है तो उसे कोई भी बॉस अपनी पॉकेट से पे नहीं करता, अल्टीमेटली वो बर्डन आगे डाल देता है कंज्यूमर के कंधों पे। महंगाई का बोझ किसको उठाना पड़ता है? कंज्यूमर को। सो दैट इज व्हाट इज नोन एज द कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। दूसरा पॉइंट, हायर प्रॉफिट मार्जिन। कई बार बहुत सारे प्रोड्यूसर्स को जब ये वाली बात पता चल जाती है कि कस्टमर कहीं ना कहीं उनके सामान की डिमांड कर रहा है, तो वो जानबूझ के वॉलंटरली अपने प्रॉफिट मार्जिन को कई गुना बढ़ा देते हैं, जिसकी शायद जरूरत भी नहीं होती, बट जस्ट टू मैक्सिमाइज देयर प्रॉफिट लेवल दे एक्सटेंड देयर मार्जिन, प्रॉफिट मार्जिन, एंड दैट वुड लीड्स टू व्हाट? अगेन अ कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। ऐसे मार्केट में बहुत सारे ब्रांड्स हैं जो अपनी कॉस्ट रिवील नहीं करते, बट हम देखते हुए ये वाली बात बता सकते हैं कि बिल्कुल इन्होंने अपना प्रॉफिट मार्जिन बहुत बढ़ा रखा है। मैं जरा एक बेस्ट एग्जांपल आपके सामने रखूं जो अपने प्राइस लेवल को बहुत ज्यादा रैपिडली बढ़ाते हैं। लाइक अमूल बटर कि कहीं ना कहीं इंडियन बटर इंडस्ट्री में एक तरीके की मोनोपोली चलती है, आप बोल सकते हैं उनका राज चलता है, और द प्राइस विच दे चार्ज इन द प्रेजेंट टाइम इज लाइक ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेटली 250 to 30 to 32 to 250 for 500 grams, which is again apparently very much higher as compared to if we see their cost of production. It is clearly visible that their profit margin is very high. We know this thing that butter is made of milk. The cost of 1 liter of milk, 1 liter milk, the cost is, forget about cost, take price. What they are charging is approximately 52 rupees for their best brand. I'm talking about Amul. Amul, they are charging 54 rupees for their best brand of milk. अगर वो 52 रुपीज प्राइस चार्ज कर रहे हैं तो कॉस्ट तो 52 नहीं होगी, कॉस्ट तो कम ही होगी। कॉस्ट कितनी होगी? शायद 30
35 या 40। अब अगर उन्हें अपना बेस्ट मिल्क इतने में मिल रहा है और वो आगे सिर्फ 500 ग्राम्स कितने का बेच रहे हैं, 230 to 250 के बीच का, तो मिल्क को बटर बनाने की जो प्रोसेस है उसमें कितना पैसा खर्च हो जाएगा, से पर पीस 40 रुपीज, 50 रुपीज, 60 रुपीज। मैं एक और बड़ी वैल्यू लेके चलता हूं 100 रुपीज कि 500 ग्राम्स के बार को बनाने में या प्रोसेसिंग में हमें 100 रुपीज लग जाते हैं, तब भी सीधा सीधा कहीं ना कहीं 130 to 150 का प्रॉफिट मार्जिन है पर पीस। ऐसी सारी चीजों की वजह से होता क्या है कि उस अमूल बटर को यूज करने वाली सारी डिशेस का रेट भी महंगा, सारे सामान का रेट महंगा। क्यों? वो बेसिक इंग्रेडिएंट है। तो अगर कंपनीज अच्छा खासा प्रॉफिट मार्जिन रखती हैं तो उससे अल्टीमेटली बहुत सारी चीजों के प्राइसेस बढ़ जाते हैं। प्लीज टेक अ लुक व्हाट इज रिटन, हायर प्रॉफिट मार्जिन, प्रोड्यूसर्स charge higher price to earn higher profit. Because of this, price of goods and services are much higher than their cost of production, which encourages cost push inflation. Just because that their prices are much higher, the cost of inflation emerges in the economy. Now, point number 3, higher taxes. Higher taxes, जब इकोनॉमी में टैक्सेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं, किन पे लगने वाले? प्रोड्यूसर्स पे लगने वाले। यहां पे मैं कंज्यूमर के नहीं, प्रोड्यूसर के पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हूं। आप अगर प्रोड्यूसर हैं और आपके ऊपर लगने वाले टैक्सेस अगर गवर्नमेंट बढ़ा दें तो कहीं ना कहीं उसका असर चीजों के दाम पे भी पड़ेगा, प्राइसेस पे भी पड़ेगा। तो बात इतनी सी है गाइस कि अगर प्रोडक्शन पे लगने वाले टैक्सेस, पहली चीज प्रोडक्शन पे लगने वाले टैक्सेस को हम नाम देते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस, क्योंकि प्रोडक्शन पे लगने वाले टैक्सेस को यूजुअली प्रोड्यूसर आगे पास ऑन कर देते हैं हमारे ऊपर। लाइक प्रीवियसली देयर वर सो मेनी इनडायरेक्ट टैक्सेस, नाउ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज मर्ज्ड all the indirect taxes into one, and that is GST, Goods and Services Tax. Still, some taxes are there, so some goods are there on which the GST is not applicable. उन पर पुराने वाले indirect taxes ही चल रहे हैं। But अगर मैं एक सिंपल GST का एग्जांपल लेके चलूं, तो सरकार ने अगर किसी गुड के ऊपर GST बढ़ा दिया तो अल्टीमेटली प्रोड्यूसर उस हायर जीएसटी का बर्डन पास ऑन कर देता है अगेन कंज्यूमर के ऊपर। तो अल्टीमेटली उससे कमोडिटी का प्राइस ही बढ़ा। किस वजह से बढ़ा? हायर टैक्स की वजह से। तो अगर प्रोड्यूसर के ऊपर टैक्सेस सरकार बढ़ा देती है तो उससे 100% कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन ही होगा। पढ़ते हैं, समटाइम प्राइस ऑफ अ कमोडिटी राइजेस ड्यू टू इंक्रीज इन द टैक्सेस इम्पोज्ड ऑन प्रोड्यूसर्स बाय द गवर्नमेंट। कि जब प्रोड्यूसर पर लगने वाले टैक्स को सरकार बढ़ा देती है, लाइक एक्साइज ड्यूटी, custom duty, etc., due to which the producer raises their price level, जिसकी वजह से प्रोड्यूसर अपने प्राइस लेवल को बढ़ा देता है।
एंड अगेन जिसकी वजह से हो जाता है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन. लास्ट, फॉल इन द अवेलेबिलिटी ऑफ बेसिक इनपुट. जब किसी चीज की प्रोडक्शन में इस्तेमाल होने वाले सामान की अवेलेबिलिटी बहुत कम हो जाती है या शॉर्टेज हो जाती है, तो आपको उस इकोनॉमी में क्या देखने को मिलेगा? सो फॉल इन द अवेलेबिलिटी ऑफ बेसिक इनपुट्स, फॉल इन द सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल्स. अगर किसी चीज को बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल लग रहा है उसकी हो जाए शॉर्टेज, तो कहीं ना कहीं उसका दाम बढ़ जाएगा. जब उसका दाम बढ़ेगा तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगी. जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगी तो फाइनल प्रोडक्ट का भी प्राइस बढ़ेगा. जब फाइनल प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ेगा तो उसे आप नाम देंगे कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन. So fall in the supply of raw materials or any input will increase the cost of production and producers will charge higher prices. This is word producers, guys, not producers. And producers will charge higher prices and that will encourage the cost push inflation. Fine. So the reasons behind cost push inflation were higher wage rate, higher profit margin, higher taxes imposed by the government on the producers, and fall in the availability of basic input used for the production. Clear, guys? So there were actually two types of inflation, डिमांड पुल एंड कॉस्ट पुश. हमने दोनों की डेफिनेशन पढ़ी और दोनों के कॉजेज भी पढ़े. हम इस चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे इन आवर नेक्स्ट लेक्चर, गाइस. आने वाली क्लास में हम इन्फ्लेशन के बारे में और भी बहुत कुछ पढ़ेंगे और मैं अपने सारे स्टूडेंट से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप प्लीज गूगल पे जाके इन्फ्लेशन के बारे में और इंफॉर्मेशन कलेक्ट करें. जैसे कि इंडिया में करंट इन्फ्लेशन रेट कितना चल रहा है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट और सेंट्रल बैंक कैसे काम करते हैं, और ये सारी चीजों को करने में आपको मजा भी आएगा, जनरल नॉलेज बढ़ेगी. फाइन, तो मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में, गाइस. टिल देन स्टडी हार्ड, कीप रिवाइजिंग, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ and come back soon in the next lecture. Thank you so much, guys, and take care of yourself.